ओके, अस्सलाम वालेकुम। रिटर्न ऑफ द नेटिव नावल जो है वो स्टार्ट किया था। करेक्टर लिस्ट जो है कल उसकी वो करवाई थी, आज समरी स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं नावल के जो बताने चाहिए। रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी। नावल जो है थॉमस हार्डी ने ये 1878 में लिखा था। द नावल इज़ डिवाइडेड इनटू 6 बुक्स। 6 किताबों में डिवाइड है ये नावल। सेटिंग एडगन हैथ, अ फिक्शनल बैरन मोर इन वैक्सेस। थीम है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। आयरनी, द थीम itself contain irony because man can never know just what sort of universe he lives in। और नावल की टोन जो है वो है डिस्टेंस, फिलोसफिकल, रोमांटिक एंड विटी। नावल स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर को। 5 नवंबर को ये नावल जो है स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग डेट थी ये नावल की। ओके, द नावल ओपन्स विद द एक्शन ऑफ द प्लॉट ऑलरेडी अंडरवे। The Riddleman Diggory Van rides onto the heath with Thomason Yobride in the back of his wagon. Thomason's marriage to Damon Wild Eve was delayed by an error in the marriage certificate and Thomason collapsed. We soon learned that Wild Eve orchestrated the error itself. He is infatuated with Eustacia Y and is using Thomason as a device to make Eustacia jealous. Eustacia is given the title Queen of Night. Important point. Wild Eve has an inn called the Quiet वुमेन। दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। निक नेम ऑस्ट्रेशिया का जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इनका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। when learns of the romance between Eustacia and Wild Eve, his own love for Thomason induces him to intervene on her behalf. Into this confused tangle of lovers comes Clem Yobride, Thomason cousin and Mrs. Yobride's son. He is a diamond merchant in Paris. इम्पॉर्टेंट है इसका क्लिम्स का प्रोफेशन क्या था? डायमंड मर्चेंट इन पेरिस। He returns to England and wants to start a school but loses his eyesight and becomes frizz cutter. Eustacia sees in the Arabian Clem as an escape from the hated Heth. Eustacia का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था कि वो हैथ से बाहर जाना चाहती थी, वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी जहाँ पर वो रह रही थी, और इसी वजह से इसने क्लिम्फ से शादी की। लेकिन बाद में जो है क्लिम्फ वो वापस इंग्लैंड ही इस वजह से आया था कि वो अब वापस वहाँ से नहीं जाना चाहता था हैथ से, और इसीलिए उसने वहाँ पर स्कूल खोलने का सोचा, लेकिन आई साइट की वजह से वो स्कूल भी नहीं खोल सका। इवन बिफोर शी मीट्स हिम शी कन्वेंसेस हरसेल्फ टू फेल इन लव विद क्लिम्फ, ब्रेकिंग ऑफ द रोमांस विद वाइल्ड ईव व्हेन हु देन मैरिज थॉमसन। जब ऑस्ट्रेशिया ने रोमांस जो है ख़त्म कर दिया वाइल्ड ईव के साथ, तो वाइल्ड ईव ने थॉमसन से शादी कर ली और फिर इनकी बेटी हुई, और बेटी का नाम ऑस्ट्रेशिया था। इम्पॉर्टेंट है, इनकी बेटी का नाम ऑस्ट्रेशिया था। क्लिम्फ मैरिज ऑस्ट्रेशिया डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑफ मिसेस योब्राइड। Once Wild Eve hears of Eustacia's marriage, he begins to desire her, although he is already married to Thomason. In marrying Eustacia, Clem distances himself from his mother. Yet soon distance begins to grow between newlyweds as well, because क्लिम्स जो है वो वापस पेरिस नहीं जा रहा था,
अब वो यहीं पर हैथ में ही रहना चाह रहा था, लेकिन ऑस्टेशिया ने तो शादी ही क्लिम से इसलिए की थी कि वो पेरिस में से वापस आया था और इसको एस्केप चाहिए था हैथ से, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा था। Wild Eve inherited a substantial fortune, and he and unhappy Eustacia once again began spending time with each other. First at the country dance where Degree Van sees them, and then later when Wild Eve visits Eustacia at home while Clem is asleep. During this visit, Mrs. Bride knocks at the door. She has come hoping for a reconciliation with the couple. Eustacia, in her confusion and fear at being discovered with Wild Eve, does not allow Mrs. Bride to house. Rejected by her son, Mrs. Bride succumbs to heat and snake bite on the walk home and dies. ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मिसेस ब्राइट जो हैं वो कैसे मरी थी। Cliff blamed himself for the death of his mother. He and Eustacia separate when he role Eustacia played in Mrs. Bright's death. Eustacia plans an escape from the heath, and Wild Eve agrees to help her. On the stormy night, the action comes to climax. On her way to meet Wild Eve, Eustacia drowns. Trying to save her, Wild Eve drowns as well. दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई थी। इम्पॉर्टेंट claim from the same faith. The last part of the novel sees the growth of affectionate relationship and an eventual marriage between Thomason and Diggory. Cliff becomes a wandering preacher, taken only half seriously by the locals. इम्पॉर्टेंट लास्ट पे नावल के क्लिम्स जो है वो प्रीचर बन गया था, ना वो स्कूल खोल सका और ना ही डायमंड मर्चेंट पेरिस में जो था वो भी नहीं रह सका था। एंड में वंडरिंग प्रीचर जो है वो था क्लिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नावल में, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से इसकी एक समरी वगैरह को देख लें। सिंबलिज़म के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो थॉमसन है, थॉमसन का एक और पॉइंट जो है वो लिख लें। जैसे उसका क्वीन ऑफ नाइट था ऑस्टेशिया का, थॉमसन का था रोज ऑफ एस्टन। ये याद रखना है इनके निकनेम जो हैं। डीमन जो है वो सिग्निफिकेंस है डीमन हु ट्रीट्स ईव वाइल्डली। ठीक है। सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है डेमन हु ट्रीट्स ईव वाइल्डली। इसके अलावा क्लिम सिग्निफाई करता है लीप एंड शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो कह लें कि क्लिम उसको सिग्निफाई करता है। ओके, बस इस नावल में इतना ही है। इस नावल को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि याद रखने ज़रूरी हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।